is a central truth in India's history, in India's past and present. This is not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. There is a women's bill. It was passed in 2023 in this house itself. This is an attempt to change the electoral map of India, using and hiding behind India's women. आज संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण ने सियासी पारा बढ़ा दिया। जहां एक तरफ उन्होंने बिल का समर्थन किया, वहीं दूसरी तरफ सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। आखिर क्या कहा राहुल गांधी ने और क्यों मचा इतना विवाद, देखिए ये खास रिपोर्ट। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे, मैं हूं आपके साथ उज़्मा। लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस का समर्थन दोहराया। उन्होंने कहा कि महिलाओं से उन्होंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। अपनी दादी इंदिरा गांधी, मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने निजी अनुभव साझा किया। राहुल गांधी ने कहा कि बचपन में उन्हें अंधेरे से डर लगता था, लेकिन उनकी दादी ने उन्हें डर का सामना करना सिखाया। उन्होंने अपने भाषण में शिव और अंधेरे की ताकत जैसे दार्शनिक बातों का भी जिक्र किया। I remember when I was a little boy, I used to be very scared of the darkness, and we used to have this huge dog who used to attack my sister and me all the time. So we were very scared of going out into the garden at night. We were scared of the dog. And one day my grandmother somehow found out about this. And I'm saying this because this was one of the most powerful lessons taught to me in my life by a woman, a grandmother. And my parents had gone out for dinner, and she came, she caught my hand, I still remember, and she took me out into the garden. Dark garden at night, no lights. No, government houses have big gardens, quite a big garden. And she took me there, and she left me. She said, now you stay here, don't move. And she left. And I watched my grandmother. I remember she was wearing a yellowish sari. I watched her go away. और मेरी मतलब हवा निकल गई कि मतलब आज तो मैं गया. I didn't have the courage to tell my grandmother that, you know, I don't want to stay here, so I stayed. And she went away. She went away probably for 1 or 2 minutes. But for me, it was like 2-3 hours. I was imagining the dog coming to bite me. I was imagining ghosts. I was imagining snakes. I was imagining everything. And then after some time, I remember my legs were even shaking a little bit, and then I saw my grandmother come. And she came, and she asked me, so, what are you scared of? So I said, you know, Dadi, I'm scared of that dog. I don't know that he might come and bite me. I'm scared of somebody being in the garden that I don't know. I'm scared of bats. I'm scared of snakes. I'm scared of things I can't see. And she says, no, Rahul, you're not scared of all those things. You're not scared of the darkness. You're not scared of the dog. You're not scared of the bats. You're only scared of your mind. हालांकि उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि यह सिर्फ महिला सशक्तिकरण का बिल नहीं है, बल्कि चुनावी नक्शे को बदलने की कोशिश भी है। राहुल गांधी के भाषण के दौरान सबसे ज्यादा विवाद उनके शब्दों को लेकर हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जादूगर कहकर संबोधित किया और नोटबंदी, बालाकोट और अन्य मुद्दों से जोड़ते हुए टिप्पणी की। इस पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए राहुल गांधी से माफी की मांग की। स्पीकर ओम बिरला ने भी हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सदन में भाषण संयमित होनी चाहिए। इन टिप्पणियों के बाद सदन में हंगामा तेज हो गया और कई बार कार्यवाही बाधित हुई। सर, जादू का शो था।
वहां पे 300 बच्चे बैठे सर, गार्डन में था, जादूगर था सर, लाल रंग का कैप पहना हुआ था, उसके सामने 2-3 मेजें टेबल्स, एक पे वो टोपी, एक पे 2-3 बॉल थी, उसके इंप्लीमेंट्स थे। उसने शुरू किया सर, पहले उसने पहले टोपी उठाई और टोपी में से उसने खरगोश निकाला ऐसे। बच्चे देख सर, सुनिए सर, कनेक्टेड है टोटली। उसने खरगोश निकाला सर, बच्चों को बहुत मजा आया, हम देख रहे थे। उसके बाद सर वो जगलिंग शुरू की सर, वो 6 बॉल थी उसमें बीच में गायब कर दी। बच्चे बिल्कुल हैरान, हम तालियां बजा रहे हैं, हंस हंस के तालियां बजा रहे हैं सर। उसके बाद क्या हुआ सर, वो मेज थी सर, वो मेज पे खड़ा हुआ ऐसे, और उसके असिस्टेंट्स आए और उसने उस पे चेन बांध दी, 3-4 चेन, और असिस्टेंट्स आए, वो ताले लिए, उन्होंने ताले लगा दिए और सब ऐसे खड़े हो गए, चेन लग गई सब जगह, और उसके ऊपर उन्होंने वो कैप सा लगा दिया काला। 1 मिनट 3 मिनट का टाइम दिया सर, 3 मिनट वो ऐसे ऐसे अंदर कर रहा था उसके। सर 3 मिनट बाद क्या हुआ, उसने अपने असिस्टेंट बुलाने शुरू कर दिए, कहा कि भैया इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वो आए, उन्होंने कैप उतारा, उसके ताले वहीं के वहीं, वो फंसा पड़ा। हम हंस हंस के मर गए सर, ये हो क्या रहा है। 300 बच्चे सर हंसना शुरू कर दिया। क्या था सर अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं, कनेक्टेड है सर। सर हुआ क्या, मैं राहुल गांधी जी, उसके बाद सर बोलने दीजिए सर, फंस गया और वो उसके ऊपर से वो उतारा और उसकी चेन हिली नहीं, हटी नहीं थी, तो उसके बाद बच्चे हंसने लग गए। अब वो कुछ भी करे, मतलब उसने 2-3 और ट्रिक्स ट्राई की, बॉल वाली ट्रिक ट्राई की, बच्चे हंसे, फिर उसने फिर से मतलब कुछ और खरगोश के साथ कोशिश की, सारे हंसने लगे। ऐसा हुआ कि बेचारा मतलब कोई भी ट्रिक करे उसके बाद बच्चे बस हंसते ही गए, हंसते ही गए, हंसते ही गए। मतलब जो उसका जो पूरा जो जादू का ढांचा था ना, वो भड़ाक से खत्म हो गया। सरकार की तरफ से कहा गया कि महिला आरक्षण बिल ऐतिहासिक कदम है जो महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करेगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि बिल को लागू करने में देरी की जा रही है क्योंकि इसे परिसीमन और जनगणना से जोड़ा गया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में जाति जनगणना का मुद्दा भी उठाया और कहा कि असली प्रतिनिधित्व तभी संभव है जब सभी वर्ग की सही हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी के भाषण के बाद सदन से उनके जाने को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह संसद की परंपरा के खिलाफ है कि कोई नेता बोलकर जवाब सुने बिना चला जाए। विपक्ष की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। महिला आरक्षण बिल का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देना है। यह बिल 2023 में पास हो चुका है, लेकिन इसके लागू होने को जनगणना परिसीमन से जोड़ा गया है। यही मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। एक तरफ सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसकी टाइमलाइन और प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। साफ है कि महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दे पर भी राजनीतिक अपने चरम पर है। जहां एक ओर इसे ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके क्रियान्वयन और मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या यह बहस किसी ठोस निष्कर्षण तक पहुंचती है या फिर सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच उलझ कर रह जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।